हाँ जी बच्चे, कल हमने आपका किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। प्लांट्स पे चलने से पहले ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कर रहे थे, है ना। इसमें आपकी बुक में बेटे छोटा सा एक ब्लू बॉक्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से थे? 4 parts I will tell you. First is kidney. Kidney actually contain nephron. Nephron acts as the filter which removes the waste from the human blood, right? और एक चीज आपकी बुक में स्पेशली दी हुई है, which is the major human waste of the body. ह्यूमन वेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाम है, एक तरह का सेपरेट तरह का वेस्ट है दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. कैन यू नेम दैट? बुक में मेंशन्ड है, इट इज यूरिया. यूरिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट waste of the body that is needed to be thrown out of the body. If it is not thrown out, so it can cause poison. ठीक है, किडनी क्लियर है. It contains nephron. Nephron acts as filter that purifies, that soaks the waste from the blood and mix it with water to form a yellowish liquid, and that yellowish liquid we call it as urine. Second होता है ureter. What is ureter? यूरेटर क्या था, याद है? ऐसे करके 2 ट्यूब्स बनाई थी, एक इस किडनी से एक इस किडनी से, है ना. These are the long tubes that carries the urine to urinary bladder. Long tubes that carries the urine to urinary bladder. Third one is urinary bladder. हाँ जी, long tubes that passes the urine from kidneys to urinary bladder. Urinary bladder क्या होता है? Urinary bladder is a, हाँ जी, urinary bladder is a sac-like structure where our urine is stored before throwing out of the body. ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर था, ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है. It is a bag or a sac-like structure that stores our urine. डायग्राम बनाया हुआ है ना, तो ये क्यों बनाना है? ये तो सिर्फ समझाने के लिए. बेटे यूरिन देखो, at every movement our kidneys are working, so they are preparing, they are making urine. अगर हर टाइम पे वो यूरिन बना रही हैं और कोई स्टोरेज बैग नहीं होगा, तो every time you need something to pass the urine, आपको हर टाइम पे फीलिंग होगी, तो वो यूरिन यहाँ पे स्टोर होता जाता है. When this bag gets filled, we have the feeling of to pass out that urine. तभी हम एक लिमिटेड टाइम के बाद जाते हैं ना, है ना. So urethra is the last part from which our urine is thrown out of the body. ठीक है. Fourth is urethra. It is the last part of our excretory system. Last part मत लिखना, it is the part from where we throw out urine from our body. Through urinary opening. ठीक है. It is a part from which the urine is passed out of the body through the
urinary opening. Clear? Through the urinary opening. Hanji, that is all about your excretory system. Now, I just want to ask one thing. If suppose kidneys of a person gets failed due to some reason, maybe one or the other reason, can he or she will survive without a kidney? One by one, please. Hanji. No, why? If kidneys of a person gets failed due to a certain reason, if the waste will not be removed, then what happened? Bilkul, it will act like a poison for our body, and ultimately our poison body gets destroyed. Okay, sit down. Very good. But beta, there is a condition. If one kidney of a person gets failed, so he can survive with one kidney. Okay, but with few precautions. Naturally है, blood उतना ज़्यादा जल्दी purify नहीं होगा. एक kidney कितना blood purify कर ले? तो एक किडनी के साथ कोई पर्सन सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कम से कम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स वाला खाना खाए, ताकि उसकी किडनी को वर्क ज्यादा ना करना पड़े. ठीक है. बट इफ पर चांस बोथ द किडनीज ऑफ अ पर्सन गेट्स फेल्ड, तो क्या वो इमीडिएटली डेड हो जाएगा, या कोई और टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम उसे बचा सकते हैं? एक मिनट, वन बाय वन. डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट. सिट डाउन. गुड बच्चे. हाँ जी रुदर, एनी अदर आइडिया बच्चे? Yes, if the kidneys of a person gets failed, ultimately kidney का वर्क क्या है? To clean the blood. ब्लड को क्लीन करना, उसमें से हार्मफुल वेस्ट रिमूव करना. ठीक है. सो देयर आर टू मेथड्स बाय विच. हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो. किडनी को पहले ट्रांसप्लांट करेंगे और उसके बाद अच्छा ब्लड चढ़ा देंगे. यहाँ पे भी दो कंडीशंस हैं. अगर आपको आपके चॉइस की, आपकी बॉडी से एक्सेप्टेबल किडनी मिलती है तभी ना. किडनी कौन सा तुरते फिरते मिल जाती है? वो तो कोई पर्सन डोनेट करेगा, देन ओनली यू विल गेट द किडनी, है ना. तो फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट मेथड जो आपने बोला है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट. दैट इज करेक्ट. एक ही किडनी से बेटे एनी पर्सन कैन सर्वाइव. दैट डिपेंड्स. ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सेप्ट करता है कोई पर्सन. ठीक है. बॉडी भी हमारे से, अगर आप एक नई चीज अपनी बॉडी के अंदर फिट कर रहे हो, तो वो बॉडी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती. उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो अगर वो एक्सेप्ट करती है तो आप दोनों कर लो, और अगर आपको अवेलेबल है तो किडनी भी तो अल्टीमेटली किसी ना किसी ह्यूमन की ही लोगे, राइट. So first method is kidney transplant. What is kidney transplant? Just replacing the old damaged kidney. There are so many reasons. Just replacing the old damaged kidney by a healthy kidney through surgical process. Through the सर्जिकल प्रोसेस. ठीक है. सर्जरी के थ्रू आपकी ओल्ड किडनी, उस पर्सन की जो डैमेज हो गई है, वो रिमूव करके a new kidney should be placed over there. Second process है dialysis. हाँ, सर्जरी
ऑपरेशन, सर्जिकल प्रोसेस मीन्स सिंपल सर्जरी या ऑपरेशन को बोलते हैं, ठीक है। सर्जरी करके पर्सन के पर्टिकुलर पार्ट को कट करके उसमें से पुरानी किडनी निकाल लेते हैं और दूसरी फिट कर देते हैं। हाँ जी, किसकी? हाउ अ पर्सन कैन सर्वाइव या व्हाट टू डू इन केस ऑफ किडनी फेलियर। बच्चे मेरी बात सुनिए, ऐसा तो नहीं है कि किडनीज इकट्ठी निकाल रहे हैं, और किडनी को अपना वर्क करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे जो सेल्स, जिस भी सेल पे सर्जरी की जाती है उन सेल्स को डेड भी किया जाता है, इतना तो पता ना सबको, ठीक है। आज की डेट में तो हार्ट ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह, जिसके बिना तो 1 मिनट भी नहीं आप सरवाइव कर सकते, किडनी के बिना तो। वो पेसमेकर अलग चीज है, पेसमेकर अलग चीज है, इवन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक भी आ गई है, रहता है ना। तो किडनी के लिए तो ज्यादा देर के लिए जिंदा रहेगा, और फिर किडनी तो होती भी 2 हैं, हम एक किडनी के साथ थ्रू आउट लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, डायलिसिस का क्या प्रोसेस है? डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड, इट इज अ प्रोसेस of just cleaning the blood by using a dialysis machine. By using dialysis machine, Angad, by separating waste products from the blood, waste products from blood using डायलिसिस मशीन। हाँ जी बच्चे, इसका मैं आपको रफ एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये डायलिसिस मशीन कैसे काम करती है। इसके लिए आपकी आर्म से ही ब्लड लिया जाता है और आपकी आर्म में ही ब्लड छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो आपने हार्ट का आर्टरीज और वेन्स किया था उसके बारे में मुझे जरा सा बता दो। सपोज पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी बॉडी में कौन से ब्लड वेसल्स हैं दैट टेक द ब्लड टू दी हार्ट। ब्लड को हार्ट के पास कौन लेके जाता है? वेन्स। वेन्स टेक ब्लड टू हार्ट। ये ब्लड लेके कहां जा रही है? हार्ट के, ठीक है। एंड can you name the blood vessels that bring the blood from the heart? Arteries, है ना? Arteries ये आपका ब्लड लेके आ रही हैं। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आर्टरीज में या वेन्स में ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों ही ब्लड में हमारे वेस्ट कंपोनेंट्स हैं लाइक यूरिया, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, एमोनिया एटसेट्रा, दोनों तरह के ब्लड में है ना। आर्टरीज और वेन्स में दोनों में है। जब ये किडनी से फिल्टर होती है तब आपका यूरिया या एमोनिया रिमूव होता है। अब किडनी तो हमारी वर्क नहीं कर रही है, तो हाउ इट विल बी टेकन? मेरे यहाँ पे सपोज मेरी आर्म में ब्लड लेके कौन आ रहा है? आर्टरी लेके आ रही है ना। तो व्हाट द डॉक्टर्स विल डू, वो क्या करते हैं? दे आर हैविंग अ डायलिसिस मशीन। उनके पास एक डायलिसिस मशीन होती है। इस मशीन में जस्ट लाइक नेफ्रॉन की तरह ही कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड को ऐसे पास करते हैं। दे विल जस्ट पास द ब्लड लाइक दिस। जब आपका ब्लड इस मशीन में से पास होता है ना, तो यहां से आपका वेस्ट कंपोनेंट रिमूव होता रहता है। योर वेस्ट कंपोनेंट गेट्स रिमूव्ड, राइट? सारा लक्ष्य समझ आ गया? तो आर्टरीज के, मेरी आर्म की आर्टरी का ब्लड यहां से मेरी आर्टरी को कट करके इसके साथ अटैच कर दिया जाता है।
अब मेरा सारा ब्लड यहाँ पे फ्लो करना शुरू हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड विल फ्लो हियर, यहाँ पे पूरा ब्लड फ्लो करेगा, है ना। और ये क्या है, डायलिसिस मशीन है, जस्ट वर्किंग एज अ किडनी। सारा वेस्ट रिमूव हो गया। जब वेस्ट रिमूव हो गया तो दिस इज योर क्लीन ब्लड। अब ध्यान रखना प्लीज, मैंने यहाँ पे प्योर वर्ड नहीं यूज किया, क्लीन ब्लड किया है, क्योंकि इसमें से हम एमोनिया, यूरिया या नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कहा था प्योर और क्लीन की बजाय आप ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड करो, एंड इट इज अ ब्लड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज या वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये उन्होंने बाद में किसके साथ अटैच कर दी, यहां से वेन्स के साथ। किसके साथ अटैच हो गई, वेन्स के साथ। और वेन्स मेरा ब्लड लेके कहां पहुंच गई, हार्ट, एंड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मीन्स किडनी का जो फंक्शन है दैट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय दिस आर्टिफिशियल मशीन। अभी ये डिपेंड करता है कि आपको इस मशीन की, किसी एबीसी पर्सन को इस मशीन की जरूरत कितने दिन बाद पड़ती है, ठीक है। अगर इट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ फेलियर ऑफ द किडनी। अगर किसी की बहुत ज्यादा डैमेज है तो उसको जल्दी जल्दी डायलिसिस करवाना पड़ता है। अगर किसी का कुछ पार्ट डैमेज है तो हो सकता है आफ्टर अ मंथ उसको डायलिसिस की जरूरत पड़े। एक बार ब्लड प्योरीफाई हो गया, एक बार ब्लड क्लीन हो गया, सॉरी, ठीक है, तो बाकी का काम किडनी थोड़ा बहुत कैरी ऑन करती रहती है, राइट। सो दिस इज अ डायलिसिस मशीन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटे, ब्लड जब भी आपका मूव करेगा, जब भी आपका ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, सेल्स के पास जाता है, तो सेल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड में वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ये भी ऐड होता है। सारे ब्लड में जाता है। बच्चे मेरी बात सुनो, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक तरह के वेस्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट है ना। उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास आर्टरीज और वेन्स हैं, ठीक है। इसी तरह से किडनीज के पास भी हमारे पास दो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, अलग अलग तरह। जो प्योर ब्लड, एक क्लीन ब्लड एक लेके जाती है, नॉन जो ब्लड इम्प्योर होता है दैट इज कैरिड बाय द अदर, ठीक है। तो अदरवाइज ये वाली जो मेरी आर्म की आर्टरी है, आर्म्स से हमने आर्टरी या वेन ली है, इसमें यूरिया हो दोनों में, ठीक है। लेकिन प्योरीफाई होने के बाद वो क्लीन हो गए, वेन्स क्लीन हो गई, ठीक है, आफ्टर डायलिसिस। हाँ जी, वेन्स ग्रीन क्यों होती हैं बेटे, इसमें काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो ये तो लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण, अदरवाइज ब्लड का कलर वही है, कट कर चुका। एक काम करना, आज जाके दोबारा पढ़। हाँ जी, इट्स क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हाँ जी बच्चे, हिमांशी, वैभव, transportation in plants. Firstly, so we will start from the very first point. What are things that are needed to be transported? Himanshi, Vaibhav, एक मिनट, नम्या, श्रेया और मनराज। So, what are the things needed to be transported? Plants need to transport mainly two things. Number 1, 2, water and minerals. Hanji, last second bench, please stand up. From where water and minerals are transported? जल्दी, plants में। प्लांट की पूरी बॉडी को वाटर चाहिए कि नहीं? कहाँ से आता है? बोल। एक सेकेंड, हाँ जी बच्चा। थ्रू रूट्स। सिट डाउन प्लीज।
through roots. And second thing which plants need to transport is food from leaves to all parts of body. To all parts of body. ठीक है, लीव्स से लेके पूरी बॉडी तक पहुंचाना. ओके जी, ये दो चीजें हमने ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं. टू ट्रांसपोर्ट दीज टू थिंग्स प्लांट्स आर हैविंग अ वस्कुलर बंडल ऑफ ट्यूब्स. ठीक है, प्लांट्स के पास दो तरह की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं वस्कुलर बंडल्स. वी कॉल देम एज वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर ट्यूब्स. These vascular tissues are of two types. हाँ जी बोलो जी. हाँ जी, याद आ गया सबको? सिराम, गुड. ठीक है, तो फर्स्ट होता है जाइलम, अदर इज फ्लोएम. तो पहले तो ये मार्क कर लो कि आपका वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर एंड मिनरल थ्रू द रूट्स दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू. ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है ना. दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू. ओके, हाँ जी बच्चे, प्लीज नोट दिस थिंग फर्स्ट. अच्छा अच्छा, first transfer of food, yes. फर्स्टली एक चीज है from leaves to all parts of body, all parts of the plant body is done by phloem tissue and phloem tissue contains sieve tubes. इसमें sieve tubes होती हैं. ठीक है, पढ़ा हुआ है, वही लाइन है ऊपर वाली. They contains by phloem contain. बच्चे बैठ जा प्लीज. हाँ जी, इधर आ जा बच्चे. स्टॉप. Phloem contains special cells. They contain special cells that are called as sieve tubes. ठीक है, इसमें इतना ही करना है हमने. And this process of transfer of food is known as, ये sieve tube नहीं है प्रोसेस का नाम. प्रोसेस का क्या नाम है? ये दो सेल्स है that are present in phloem tissues. sieve tubes. इस प्रोसेस का नाम पता है किसी को? It is called as translocation of food. मेरे को नहीं समझ नहीं आ रहा. Yes, it is called as translocation of food. Clear? Phloem contains special cells called as, बेटे ये सारे आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं.
So you should go through these. Water is absorbed by the root. Water is absorbed by the roots. हाँ जी. Sit down. हाँ जी बच्चे, please. Roots contains root hairs, and these root hairs, this give a increased surface area. Root hair gives increased surface area to absorb more water. Surface area to absorb more water. कैसे बच्चे, प्लीज ये चीज क्लियर कर लो. जाइलम टिश्यू में एक दो चीजें समझने वाली हैं. देखो, अगर कोई प्लांट की रूट ऐसे है सिंपल, तो ये इतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगी जितना पार्ट उसके आसपास है ना, जितनी वो सॉइल के आसपास है. अगर इस रूट में छोटे छोटे रूट हेयर्स हो जाए तो उसका ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, वो ज्यादा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया of the roots to absorb more water. And the process of absorbing water from the soil is called as osmosis. ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताने की कोशिश की थी बेटे. Osmosis is a process by which water is absorbed by the roots. अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ अ वाटर, passage of a water from a region of high concentration to low concentration through किस चीज की हेल्प से? Through the semi-permeable membrane. नौनिहाल प्लीज, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस हो रही है. Through the semi-permeable membrane. अब ये semi-permeable membrane क्या होती है बच्चे? कोई भी एक membrane जिसके थ्रू सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी की जितनी कैपिलरीज है वो सारी सेमी परमिएबल है. अब लंग्स की कैपिलरीज है, उसमें से ब्लड नहीं पास हो सकता लेकिन गैसेस पास हो सकती है. ठीक है, तो वो भी सेमी परमिएबल है. किडनीज की कैपिलरीज जो हैं उसमें से वेस्ट निकल सकता है पर ब्लड नहीं निकल सकता. Semi-permeable membrane. Semi-permeable means जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को पास करने की परमिशन देती है. So what is semi-permeable membrane?